Now, hours before the Hyundai i20 car exploded near Delhi's Red Fort on Monday evening, CCTV footage captured Dr. Umar Nabi, the prime suspect, in Connaught Place and later outside a mosque in Turkman Gate. The first video shows the i20 car in the outer circle of Connaught Place. CCTV cameras captured Nabi purportedly stepping out of the vehicle and walking around it for nearly 10 minutes at Connaught Place at the E block. Now, near Turkman Gate's Faiz Ilahi Masjid, the footage shows Nabi leaving the car unmasked around 2:30 p.m., entering the mosque, offering prayers and leaving after 10-15 minutes. Nabi entered Delhi from the Badarpur border around 8 a.m. and drove across southern, central, eastern and northern Delhi before the car blew up at 6:52 p.m. near the Red Fort. Fresh CCTV footage has emerged of Dr. Umar Nabi wearing a mask and driving through the Badarpur border toll in his Hyundai i20, which he detonated near the Red Fort, killing 13 people. A large bag was placed on the back seat of the car. The video clearly shows the tainted Kashmiri doctor, considered to be the most radicalized member of the Faridabad terror module, stopping at the toll plaza gate, handing money to the collector and glancing multiple times at the CCTV camera. The timing on the footage is 8:02 a.m. on Monday. Omar appears to be conscious, as if he was already aware that security agencies were on the lookout for him after the Jaish-e-Mohammed linked white-collar terror module was busted the same day. From the moment Umar stops to pay the toll collector until he drives away, he's seen looking directly into the CCTV cameras multiple times. He's believed to have fled from Faridabad before the raid. After fleeing, Umar reportedly travelled through Haryana's Mewat to reach Firozpur Jhirka before returning to Delhi via the Delhi-Mumbai Expressway. He reportedly spent the night at a roadside dhaba along the expressway, sleeping inside his car. On Monday morning, he re-entered Delhi via the Badarpur border after passing through Faridabad once again. Before the explosion in the evening, he drove around other parts of the national capital, including Connaught Place. From the heart of the city, he drove to the Faiz-e-Ilahi Mosque near Ramlila Maidan, opposite the Turkman Gate, where he stayed for over 10 minutes before heading towards the Red Fort at 2:30 p.m. He then spent his last few hours of his life in the parking lot of the Suneri Masjid near the iconic monument, before proceeding to detonate his car finally at 6:52 p.m. In another CCTV footage, it captured the exact moment a Hyundai i20 exploded near the Red Fort. This chilling visual shows Chandni Chowk Subhash Marg packed with vehicles and pedestrians during peak evening rush hour. A blast took place in a slow-moving car at a traffic signal near Red Fort. In the visual, we can see cars crawl through traffic as commuters cross the road when, within seconds, a massive flash of fire erupts. The explosion sends a towering blaze and shock waves through the crowded stretch. The investigation by Delhi police personnel and other agencies is still underway at the site of the Delhi car blast. The blast in Delhi has killed 13 people. And I have my colleague Javed Hussain joining me with more details. Javed, आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? और देखिए, जिस तरीके से लाल किले ब्लास्ट को लेकर लगातार जानकारियां और खुलासा होता जा रहा है और किस तरीके से जो ब्रेजा कार है वो कार मिल चुकी है, उसके बाद किस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल बिल्डिंग नंबर 17 रूम नंबर 13 में किस तरीके से वो रह रहा था, किस तरीके से पूरे एक मॉड्यूल को एग्जीक्यूट किया जा रहा था और साथ ही इसमें कई डॉक्टर आदिल और कुछ डॉक्टर्स जिनको डिटेन किया गया है। इसके अलावा एक पूरा जो प्रोसेस है जो चला आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की इस ब्लास्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली सोर्सेज के अकॉर्डिंग कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भी एक नोटिस भेजा गया है इस यूनिवर्सिटी के पूरे फंडिंग और इसके एस्टैब्लिशमेंट को लेकर कि किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया, इसमें कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया। इसके अलावा जिस तरीके से तमाम जो वाइट कॉलर डॉक्टर्स जो है इसमें जिस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, उसके साथ जो जम्मू कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आपको बता दें कि जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो पूरी तरीके से इस मॉड्यूल को एग्जीक्यूट किया जा रहा था
और ज़्यादातर इसमें डॉक्टर्स सामने आए हैं क्योंकि सारे वाइट कॉलर्स हैं और ये वहाँ पर अल-फलाह में एक लंबे समय से वहाँ पे रह रहे थे और इस तरीके से इनका जो नेक्सस था, इनका जो एक पूरा नेटवर्क कनेक्शन था, वो किन किन लोगों को होता है, इस चीज़ों को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, बताया जा रहा है कि वो भी अपनी बात अब मीडिया के सामने रख रहे हैं और अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अल-फलाह पूरे दुनिया में अब इस टेरर मॉड्यूल को लेकर जाना जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक साथ इतने डॉक्टर्स, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में, आखिर इसकी जो भनक है वो किसी को कैसे क्यों नहीं लग पाई। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस की लोकल टीम ने यहाँ आसपास की तमाम जो साइड की दीवारें देख रहे हैं या जो यहाँ पर इस ग्रिल के पास जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये किनारा है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की लोकल टीम ने सस्पेक्ट एलिमेंट को लेकर जो है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया था। बगल में ही यहाँ पे जैन मंदिर है, जैन मंदिर में भी अंदर टीम गई थी। उसके बाद यहाँ पर पेड़ों के आसपास भी एक बार फिर से दोबारा से जो है सर्च ऑपरेशन को किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया कि किसी तरीके का कोई एलिमेंट्स या कुछ ऐसे पार्ट्स या कुछ जो चीज़ें जो ब्लास्ट से रिलेटेड है, कहीं वो यहाँ पर आकर गिरा तो नहीं, क्योंकि जो ब्लास्ट है इतनी हाई डेंसिटी ब्लास्ट थी कि जो एक हाथ का टुकड़ा जो है बता रहे हैं, वो ये सामने जो आप मेरे मार्केट देख रही हैं, इस मार्केट में अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड में एक शॉप है जिसकी दुकान के ऊपर वो हाथ का एक टुकड़ा जाकर गिरा हुआ था, जिसे लेकर जो है इंफॉर्मेशन दी गई थी। उसके बाद फॉरेंसिक की टीम, उसके बाद सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज की टीम, फिर क्राइम टीम और दिल्ली पुलिस, इसके अलावा एजेंसी, सभी लोग वहां पर पहुंचे थे। और इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आप देखिए जो सामने मेरे विजय और सुधीर कुमार जो दिखा रहे हैं कि जो टेंट से जो पूरी तरीके से कवर इलाका है, ये वही इलाका, इसी के आगे जाकर ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट का जो कितना हाई डेंसिटी ब्लास्ट हुआ कि यहाँ से उड़कर जो ऊपर आप देखिए वहाँ से इस पीछे जो मार्केट है वहाँ तक उड़ के आया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल एक्सप्लोजिव रहा होगा। हालांकि एक तरफ तो एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी ये भी कह रही है कि ये पूरी तरीके से जो है आपको असेंबल नहीं हुआ था, ना ही पूरी तरह से मॉडिफाइड था, लेकिन ये पावरफुल, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से इसको ले जाया जा रहा था कि ये अचानक सडनली ब्लास्ट हुआ। लेकिन इसमें और भी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन है, टाइमर को लेकर और किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, इसी चीज़ों को लेकर जो है एनआईए की एक टीम जो है इस कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है। एनआईए की एक टीम जो है इस वक्त अल-फलाह में है, एनआईए की एक टीम इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, एनआईए की एक टीम जो है धौज के इलाके में है, एनआईए की टीम इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में है, एनआईए की टीम इस वक्त जो है दिल्ली के कुछ इलाकों में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। एनआईए की जो एक टीम है, यानी कि कुल मिला के 10 से ज़्यादा जो ऑफिसर्स की टीम बनाई गई है, जिसको अलग अलग इन्वेस्टिगेशन का जो है एक थ्योरी और इस केस को लेकर, इस ब्लास्ट के केस को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और एनआईए को जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, हरियाणा क्राइम ब्रांच, यूपी एटीएस, सभी से मदद मिल रही है। जी जावेद, बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। नाउ अ सस्पिशियस ब्रीजा car at Al-Falah University, Dhauj, is being investigated by Jammu and Kashmir police. NewsX has now accessed the image of this breezer. Earlier, breezer connected to the blast had been recovered by the authorities. जावेद, हम ये ब्रीजा गाड़ी की फोटो जो है, पिक्चर है, हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? और देखिए ये जो ब्रेजा कार है जो इस वक्त जिसको लेकर जम्मू कश्मीर इसकी जांच कर रही, इस ब्रेजा कार का जो नंबर है HR87U9988 है, यानी कि ये वहीं की गाड़ी है। और इस गाड़ी को जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी है इसको ये शाहीन, डॉक्टर शाहिद के नाम गाड़ी है और इसमें बाकायदा जो है एक डॉक्टर का सिंबल भी लगा हुआ है। इस गाड़ी को जो है डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो इस्तेमाल कर रहा था और इस गाड़ी को ही तलाश किया जा रहा था। और अब इस गाड़ी को लेकर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच भी मौके पर इसको पूरी तरीके से इसको स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके एक एक पार्ट्स को लेकर इस गाड़ी के तमाम फिंगरप्रिंट्स लिया जा रहा है, सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर
उमर, डॉक्टर मुजम्मिल की जो फॉरेंसिक जो जांच हुई है, उसके अलावा जो मुजम्मिल के जो फिंगरप्रिंट्स लिए होंगे उसके एक सैंपल को भी इससे मैच किया जाएगा कि मुजम्मिल ने कौन कौन सी गाड़ी चलाई, क्योंकि कल इको स्पोर्ट्स जो मिला था खंडावली फरीदाबाद के ही इलाके में गांव के पास। इसके अलावा देखिए इस ब्रेजा कार को बताया गया था कि शाहिद शाहीन ने खरीदा था, लेकिन इस गाड़ी को, इस ब्रेजा कार को मुजम्मिल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता था और उसके बाद एजेंसीज को इस गाड़ी की तलाश थी, लेकिन ये अल-फलाह के ही पार्किंग में इस गाड़ी जो मिली है। इसमें जावेद, आप बने रहिए and viewers, we are getting some more breaking news. Now, according to NIA sources, the name of another person in the Jaish-e-Mohammed module has emerged following the interrogation of Dr. Shaheen. The investigation team reached Hapur late last night to inquire about Dr. Farooq, who is a resident of Kashmir. The police has detained Dr. Farooq from GS Medical College in Hapur. Dr. Farooq previously studied at Al-Falah University in Faridabad. जावेद, ये जो नई खबर आ रही है डॉक्टर फारूक के बारे में, उसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक यही है जिसका आधार कार्ड में ये जो तस्वीर सामने आई है, इस वक्त देखिए डॉक्टर फारूक यही है जो फारूक अहमद जो है लिखा हुआ है। और ये देखिए डॉक्टर फारूक है जिसको हापुड़ से इसको वहाँ से हिरासत में लिया गया है और ये कश्मीर मुल्क है। ये पहले अल-फलाह में फैकल्टी था, उसके बाद ये हापुड़ में एक जो है यूनिवर्सिटी में वहाँ पर फैकल्टी था और इसको लेकर एजेंसी जो है कल देर रात ही वहाँ पे पहुँची थी। उसके बाद इससे पूछताछ की गई। देखिए इसमें यहाँ पर उसकी पूरी डिटेलिंग दी गई है। फारूक अहमद दार पूरा नाम है और ये जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। और आपको बता दूँ कि मीरीपोरा बिरवा का ये जो इलाका है इसके बुडगम जम्मू कश्मीर का है और ये बेरवा पोस्ट बेरवा डिस्ट्रिक्ट जो है बुडगाम, यानी कि वहाँ का ये रहने वाला है। डॉक्टर जो अब्दुल कयूम जो फारूक अहमद दार है, माफ़ कीजिएगा, और इसको NIA ने अभी हिरासत में लिया है और इससे भी इस पूरे मॉड्यूल को लेकर, क्योंकि देखिए जो डॉक्टर्स का जो एक पूरा चेन सामने आया है, जो डॉक्टर्स को लेकर जो पूरी जानकारी सामने आई है, उसको लेकर इस पूरे मामले के लेकर जो जांच की जा रही है, डॉक्टर्स की एक लंबी चेन इसमें सामने आ रहा है। क्योंकि जो उमर है जो इस ब्लास्ट में, जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, इस ब्लास्ट में जो गाड़ी के साथ ही जिसकी मौत हुई है, उसको भी उसके सैंपल को जिस तरीके से मैच किया गया और मैच में जिस तरीके से सामने आया कि हाँ यही जो गाड़ी में मरने वाला शख्स जो है वो उमर ही है, क्योंकि उमर भी वहाँ पे फैकल्टी था जैसा कि वहाँ के लोगों ने बताया। और उसके बाद जो है जो जिस तरीके से वहाँ पे इसको डॉक्टर जो उमर है, उमर इस ब्लास्ट में मरा, उसके बाद उसके सैंपल को कलेक्ट किया गया। सैंपल कलेक्ट करने के बाद जिस तरीके से DNA मैच हुआ और मैच के बाद ये साफ हो गया कि जो इस मरने वाला जो शख्स है वो उमर ही है। और उमर को लेकर कई CCTV कैमरा भी सामने आया और उस कैमरे को लेकर CCTV फुटेज में साफ दिख रहा था कि किस तरीके से। जी जावेद, बने रहिए हमारे साथ। And now the roommate of Dr. Arif, Dr. Abhishek, who's being questioned in connection with the Delhi blast case, has said that he and Arif were not friends. He also said he never heard the names of Dr. Shaheen or Parvez from him. He went on to say that, and I quote, "There was no change in his behavior after the blast. He used to stay absolutely normal in the room." The ATS and NIA had detained Arif after his name allegedly surfaced during scrutiny of the phone records of Dr. Shaheen. According to investigators, the two had been in regular contact for several months. Let's listen in to what he said. हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो इनिशियली हॉस्टल अलॉट नहीं होते हैं, तो सब लोग 2-2, 3-3 करके ऐसा रेंट पे फ्लैट लेके सारे रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं। तो यही है सर। अभी आपसे किसी तरह की पूछताछ की गई है? जी कैसा जब शाम को साथ रहते होंगे तो फोन पे बातचीत किन लोगों से करते थे? क्या उनके दोस्त भी आते थे आपके फ्लैट पे? नहीं सर, ऐसा मैं तो कभी नहीं मिला। क्या कभी कोई मिलने आता था उनसे कि परिवार के लोग या जहाँ से वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे वहाँ के लोग आए हों? ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो बता रहे शायद मदर आके शायद साथ में हरियाणा और पंजाब की गाड़ी आती थी उनके पास। नहीं, मदर शायद आने वाले थे साथ रहने के लिए। अभिषेक, डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज का नाम उनके मुंह से सुना कभी? ये सब कभी। अभिषेक, कभी कोई फैमिली के बारे में आरिफ ने जिक्र किया हो आपसे? कुछ आपने कभी रूममेट थे तो जाहिर है कुछ ना कुछ फैमिली की बात होती होगी। उसके पापा का क्या कहते हैं गैस्ट्रिक का ऑपरेशन कुछ हुआ था, कैंसर पेशेंट थे, इतना पता है मेरे को। हाँ, तो यही है। ये चीज उन्होंने साझा की थी आपसे? हाँ, वो भी गया था। उमर के क्या किसी उमर नाम
अभी अनंतनाग भी गए थे 1 महीने पहले, कुछ जानकारी? तो क्या कोई पार्सल वगैरह आते? आरिफ उमर के क्या बैचमेट थे क्या? मैं आरिफ नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं मालूम सर। मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से है, क्या पिछले 4-5 दिनों के दौरान जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उनके स्वभाव में कोई चेंजेस आया हो या कुछ तरीके की एक्टिविटी, कुछ बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ हो? ऐसा कुछ नहीं। धर्म को लेकर क्या बंदिशें थी, कुछ ऐसा आपने कभी देखा जैसे साथ रहते थे, कुछ देखा हो आपने? नहीं, अपना सब काम करते हैं, ऐसा कुछ मुझे इशू नहीं हुआ कभी। ज्यादा एक सवाल डायरेक्टर साहब आपसे है, सुनने में आ रहा है कि ये इन्होंने हाई रैंक हासिल की थी तब आप यहाँ इनका सिलेक्शन हुआ, ऐसा मुझे सुबह बताया गया था। तो क्या रैंक थी इनकी, किस तरीके के थे? 1008 रैंक थी ऑल ओवर इंडिया, जिसको एक होनहार छात्र की निशानी मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वो यहाँ तक। और इन्होंने आगे की पढ़ाई कहाँ की थी, इसकी कोई जानकारी? यही सबसे लास्ट डिग्री होती है, इसके बाद तो नहीं, इसके पहले की श्रीनगर से पढ़े। नहीं, मेरा ऐसा कुछ बात नहीं हुआ उससे अलग से, मतलब क्या। फैमिली मेंबर से आपने बात करी? आपको अंदाजा था कि इस तरह से आरिफ को लेकर सस्पेक्टेड मामला आएगा? नहीं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था ऐसा। किस तरह से बॉडी लैंग्वेज था? अपना ड्यूटी पे आते से डॉक्टर से काम करते जाके चले आते। किस तरह से आप लोग रूम में भी नॉर्मल थे सर। खाना पीना तो साथ रहता होगा ना? हाँ, मेड खाना बनाते थे, वो खाते थे, सो जाते थे सर। रूम आपने दिलाया था? बातचीत कैसे? नहीं, रूम मैंने नहीं दिलाया था। किसी तरह की कैसे एक्टिविटी? हुआ करती है? नॉर्मल जैसे बात करते हैं कॉलीग्स आपस में, वैसे ही सर, ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम के बारे में बातचीत होती थी क्या? नहीं, मेरी क्यों ही होगी इस बारे में बात? कभी आपने बातचीत सुनी हो फोन पे? किसी से फोन पे बात करते सुना हो? मैंने देखा नहीं सर, कुछ प्रैक्टिस करते हुए। कमरा अलग है, अपना अंदर जो मर्जी करें। जब से यहाँ पे आए वो ज्वाइन करने, कॉलीग्स मिलते हैं सब इधर, दैट्स इट। All right, now investigative agencies have taken in custody a 40-year-old Imam Ishtiaq. The arrest of Maulvi Ishtiaq, the landlord of accused Dr. Muzammil Shakil, is key to the ongoing investigation. Muzammil was given a house on rent in Fatehpur Taga, Faridabad. Ishtiaq is a resident of Singer village in Puhana town. Remember viewers, on November 9, police seized 2,563 kgs of ammonium nitrate. Notably, Imam was employed 20 years ago at a mosque adjacent to the Al Falah University campus. And I have my colleague Javed Hussain joining me with more details. Javed, ये जो इमाम इश्तियाक की बात अब उभरी है, उसके बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? जी देखिए, डॉक्टर इश्तियाक से पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि इस वक्त दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जैन मंदिर के बाहर निकली है और यहाँ पर जिस तरीके से सस्पेक्ट एलिमेंट्स को तलाशा जा रहा था, वैसे इस वक्त यहाँ पे जैन मंदिर के पास भी अंदर जो है जैन मंदिर में इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और देख ले सकते हैं हाथों में ग्लव्स और ब्लैक कलर का जो पॉलिथीन है उनके हाथों में। यहाँ पे पूरे इस इलाके में यहाँ पर इस वक्त जो है ये जो है जैन मंदिर का है इलाका, अंदर भी दिल्ली पुलिस के जो इंस्पेक्टर्स रैंक और सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल जो लोकल टीम है वो यहाँ पर पहुंची है कुछ देर पहले ही। और यहाँ से जो ब्लैक कलर की पॉलिथीन सभी के हाथ में और यहाँ से सस्पेक्ट, क्योंकि इसी रास्ते में वो आगे जाकर एक शॉप है जहाँ पर वो एक जो हाथ का चिथड़ा जो था वो शॉप के ऊपर पड़ा हुआ था। उसके बाद से जो लोकल पुलिस कहीं ना कहीं इसको एक बार फिर से सर्च करने की कोशिश कर रही कि ब्लास्ट जिस तरीके से हाई डेंसिटी था और किस तरीके से उड़ के यहाँ तक आया, तो उसको लेकर किसी तरह की कोई चीज़ें ना छूटे इन्वेस्टिगेशन को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेट चल रही। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने पूछा कि जो मौलाना इश्तियाक है उसने वो जो प्लॉट है जहां पर वो 25,563 किलो जो एक्सप्लोजिव वहां से मिला था, वो उस मकान उस प्लॉट को उसने 4 साल पहले खरीदा था, जिसमें 2 लोग रहते थे। एक जावेद नाम की फैमिली थी जो कि हैंडीकैप था, उसका परिवार था, और दूसरे कमरे में जो है आपको बता दें कि वहीं वो जो एक्सप्लोजिव रखा होता है। देखिए इस वक्त मैं आपको एक बार तस्वीर दोबारा दिखा दूं कि दिल्ली पुलिस यहाँ से वापस बाहर निकली है जैन मंदिर से और यहाँ पर जो सस्पेक्ट एलिमेंट है जो हाथों में ब्लैक कलर की जो ये पॉलिथीन है इसमें कुछ ना कुछ जो है एलिमेंट्स को यहाँ से कलेक्ट किया गया और इस वक्त पूरी टीम जो है अब इस मार्केट की तरफ गई। ये लाला लाजपत राय मार्केट है और इस वक्त न्यूज़ एक्स पे आप देख सकते हैं कि जैन मंदिर के परासर से कैंपस से ये लोग निकले हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की लोकल टीम है जिसमें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग थानों की टीम है
जो यहाँ पर जो सभी के हाथों में ब्लैक कलर की जिस तरह से जी पॉलिथीन जावेद, है, बने उन्होंने रहिए यहाँ मेरे से साथ, मैं आपके पास लौट के आऊंगी. Now viewers, we've got more breaking news coming in. Now more details are coming in out of the silver Breezer car. The vehicle number is HR87U9988. Registration authority is under STM Badkhal, Haryana. It was registered on 25th September 2025 and its fitness validity is till 24th September 2040. All right, now according to intelligence agency sources, a plan was underway to rig 32 vehicles with explosives for coordinated attacks across multiple cities. Reportedly, the cars were brought prepped to carry explosive materials or deliver bombs. I have my colleague Javed Hussain joining me with more details. जावेद, ये जो नई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है 32 व्हीकल्स के बारे में, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? देखिए, तमाम अलग अलग व्हीकल्स को लेकर, ये जो सस्पेक्ट व्हीकल्स है उसको लेकर जो है एक इन्वेस्टिगेशन की जो थ्योरी है वो आगे बढ़ी है. क्योंकि देखिए, जो वहाँ पर अगर अल्फला की बात करें, अल्फला के बाद हम यहाँ पर जो एजेंसीज जिस तरीके से पूरे जांच को आगे बढ़ा रही है और जिस तरीके से I-20 इस्तेमाल हुआ, और भी इसमें जो गाड़ियों का जिक्र है, इसके अलावा कुछ और भी जो गाड़ियाँ हैं उनको लेकर जो एक इनपुट के बेस पर इसको इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि अब तक जिस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को जो ऑपरेट किया गया, इस मॉड्यूल में कितने लोग शामिल हैं, कितने लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, कितने हैंडलर्स के तौर पे थे, कितने स्लीपर सेल के तौर पे थे, कितने ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर, लॉजिस्टिक के तौर पर इन पूरे जो टेरर मॉड्यूल है इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे. क्योंकि इसमें कई ऐसे नाम अभी भी आना बाकी है, लेकिन अभी तक की अगर जांच को आप देखें, अगर थ्रूली थोड़ा सा रिवर्स करके देखें, तो अब तक इसमें सारे तमाम वाइट कॉलर्स डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं. और इसमें एक दो हैंडलर्स कह सकते हैं या फिर सपोर्टर्स कह सकते हैं, सपोर्ट कह सकते हैं, जो जिनको इसमें शामिल किया गया, इसमें जोड़ा गया. अब क्या उनको इस बारे में पूरा पता था या इस बारे में उनको इस मॉड्यूल के बारे में नहीं पता था, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है. लेकिन एजेंसी जो है, एनआई एजेंसी जो है, ये इस पूरे मामले में हर एक रोल को वेरीफाई कर रही है, हर एक रोल को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है, पूरी तरह से उनके रोल को स्क्रीनिंग की जा रही है कि आखिर किसका कितना रोल है. क्योंकि देखिए, इस टेरर मॉड्यूल में जिस तरीके से सिग्नल ऐप के साथ साथ सोशल मीडिया के तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की बात आ रही है, उसमें तमाम ग्रुप्स की बात आ रही है. तो अब क्या सभी डॉक्टर्स ने अलग अलग एक ग्रुप बना रखा था? इनका क्या एक कोर ग्रुप था जिसमें कुछ ही लोग थे, और उस ग्रुप में जो एक एग्जीक्यूशन के बाद क्या उसको आगे अलग अलग ग्रुप्स में सर्कुलेट किया जा रहा था? ये टेक्निकली बेस पर भी एग्जीक्यूट इसको किया जा रहा है. सभी के फोन्स की जो है डिटेल जो है इनकमिंग आउटगोइंग, सभी के फोन का कौन-कौन से फोन पे कितने ग्रुप बने. Trouble does not seem to end for Haryana's Al Falah University after it came into the spotlight following its links to the Red Fort blast, the accused, and a terror module involving the Jaish-e-Mohammed. In the latest update, we're getting to know that the bomb squad has reached Al Falah University. Even DSP and crime branches have arrived at Al Falah University. Earlier, the university's website was taken down as it received a show cause notice from NAAC for displaying a false accreditation claim. Meanwhile, the Enforcement Directorate will probe the university's funding as well as the financial transactions of its doctors. The NAAC said the Grade A accreditation displayed on the university's website was absolutely wrong and misleading the public. The Al Falah administration has been asked to respond in 7 days. The Al Falah School of Engineering and Technology's Grade A accreditation expired in 2018, while that of the Al Falah School of Education and Training was valid from 2011 to 2016. The National Medical Commission said appropriate action would be taken against the university following an investigation. So far, over 50 employees of the university and doctors associated with the hospital in its premises have been questioned. I have my colleague Javed Hussain joining me with more details. Javed, Al Falah University under the scanner है, आप और क्या बता सकते हैं हमें?
देखिए इस वक्त जो है तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की जो एक सबसे अहम सुई कहें या सबसे अहम रोल कहें वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तरफ और नेशनल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, देश की जांच एजेंसी की बात करें और देश की सेंट्रल जो इंटेलिजेंस की टीम यूनिट की बात करें या फिर हम आपको हरियाणा क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एटीएस, गुजरात एटीएस, मुंबई एटीएस, सभी का जो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है वो कहीं ना कहीं अब अल-फलाह की तरफ मुड़ गया। क्योंकि देखिए अल-फलाह में ही डॉक्टर मुजम्मिल उमर जो कि इस ब्लास्ट में मारा जा चुका है, उसके अलावा डॉक्टर शाहीन शाहिद, इसके अलावा फारूक जो कि हापुड़ से जिसको हिरासत में लिया गया है, आदिल का नेटवर्क के बाद इस कनेक्शन का पूरा मॉड्यूल सामने आया। और अल-फलाह एक ट्रस्टी यूनिवर्सिटी है और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस तरीके का एक बहुत बड़ा जो प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी कहें देश के विरुद्ध जो ये विरोधी एक्टिविटी, टेरर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी, तो आखिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को क्या इसकी भनक थी या नहीं थी? और अगर इस तरीके से and with that we're slipping into a short commercial break. See you on the other side.